نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 31 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ رمضان المحترم سے پہلے کے اس آخری اتوار کے درس کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری اور شرکت کو بھی قبول فرمائے۔ آنے والے مبارک اور تمام رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا عظیم مہینہ آپ سب کو بصحت جسمانی ایمانی نصیب فرمائے۔ جو بھی اسباب اور ذرائع درکار ہیں وہ سب عطا کرے اور جو بھی مشکلات ہیں وہ سب دور فرمائے۔ بالخصوص صبر کا مہینہ ہے، تحمل برداشتگی اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ رمضان المحترم ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ ایسے ٹپس اسلامی اعتبار سے ہمیں معلوم ہو جائیں جس سے کہ یہ بہترین مہینہ بہتر سے بہترین گزرے، اور پھر جو بھی اللہ پاک نے ان میں اعزازات اور انعامات رکھے ہیں اللہ ہمارے بھی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اس لیے توجہ سے 2-3 باتیں بالخصوص عورتوں کے حوالے سے مجھے کرنی ہے، یہ 2025 کے رمضان کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شریعت سے محبت، اللہ رسول سے محبت اور پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ اس عبادت کو بجا لانے کی نیت رکھنی ہے۔ یعنی ابھی جمع کر کے رکھو، میں بعد میں لے جاؤں گا، پہلے آپ سنو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ دراز کرے اور آپ سب کی زبانوں میں تاثیر دے اور قبول ہو دعائیں۔ اب خالی دے دو تو پھر میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ پہلے جمع کرو پھر انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے اور جو بھی چھوٹی موٹی ہوئی ہے اس میں کمیاں بیشیاں اللہ پاک اسے معاف کرے۔ رمضان المحترم اگر اس کی عظمتیں برکتیں سعادتیں اللہ پاک نے ان میں کیا رکھی ہیں تو امت یہ حسرت کریں گی کہ کاش پورے 6 مہینہ رمضان ہو جاتا، کاش پورے سال رمضان ہو جاتا۔ رمضان میں بڑی عظمتیں ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو، اور امت محمدیہ غافل ہے ان سے۔ اسی لیے جو سب سے بڑی بات آج کہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان 11 مہینے جو ہم نے کھائے ہیں اس کھانے کے احتساب کا مہینہ ہے، جائزہ کا مہینہ ہے، اور بھوکے رہ کر کے ان تمام کو احساس میں لانے کا مہینہ ہے جن کو ایک وقت کا کھانا میسر، 2 وقت کا کھانا میسر بھی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ روزہ ان کے لیے ایک جائزہ کا مہینہ ہے کہ انسان تجھے ایک دن نہ کھاؤ، 1 مہینہ نہ کھاؤ تو تمہیں کیسا احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ پورے سال بھر تک ایک وقت کے کھانے پر گزار دے رہے ہیں یا بمشکل 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، ان غریبوں اور ان خالی پیٹ رہنے والے اور والیوں کو احساس کرو۔ یہ ہے اصل فلسفہ روزہ اور یہ ہے حکمت روزہ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ رمضان ایک جائزہ کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، برداشتگی کا مہینہ ہے، اور ان غریبوں فقیروں اور نہ کھانے والوں کو یاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ کھانا پینا فریج میں بھی بھر کر کے دے، گھر میں بھی راشن موجود ہو، پھر بھی کہے کہ بھوکے رہو، یہ کیسا ہے؟ تو بھوکے رہنا یہ آپ پر ظلم نہیں بلکہ اپنے ان تمام مومن بھائیوں کو
गरीबों और फकीरों को जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं, याद करने का महीना है कि तुम जायजा लो कि तुम पर कितना बड़ा करम है कि तुम्हें हमने 365 दिन तक, पूरे 11 महीने तक हमने तुम्हें भूखा नहीं रखा। तो एक महीना भूखा रह करके एहसास करो कि भूखे रहने का मतलब क्या होता है और उसका एहसास क्या होता है। यह सबसे बड़ी हिकमत है। और दूसरी बड़ी हिकमत यह है कि खालिस अल्लाह पाक की इबादत है, इसमें कोई रियाकारी और दिखावा नहीं होता। यानी आप खाली पेट हैं तो आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मैं खाली पेट हूं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये रोजा के अलावा जितनी भी इबादतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोजा के अलावा जितनी भी इबादतें हैं सब में कुछ ना कुछ रिया का पहलू है, दिखावा का पहलू है। दिखा सकते आप, नमाज दिखावे के लिए पढ़ सकते, हज दिखावे के लिए कर सकते, ज़कात दिखावे के लिए दे सकते, लेकिन रोजा दिखा नहीं सकते आप, क्योंकि पेट के अंदर भूखे रहने का नाम है। आप बोल नहीं सकते कि मैं रोजा हूं, मेरे पेट खाली है वगैरह। ये इसीलिए अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की खास हदीस, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक ने फरमाया कि बंदे और बंदियां रोजा खास मेरे लिए रखते हैं और मैं इसका बदला डायरेक्ट दूंगा, या मैं खुद इसका बदला हूं। क्यों? दीगर इबादतों में कुछ पहलू हैं, सबब के पहलू, जराए के पहलू, लेकिन यह बंदा खाना रख करके छोड़ रहा है, यह बंदा सब कुछ पॉसिबल होने के बावजूद छोड़ रहा है, इसमें रियाकारी नहीं हो सकती। तो रोजा रियाकारी से पाक रहने का नाम है, एकदम साफ सुथरे उन्वान का नाम है, इसमें कोई दिखावा का पहलू है ही नहीं, इम्पॉसिबल। फिर भी अगर बंदा रोजा इस नीयत से रखे कि हमें कोई रोजदार कहे, तो फिर ये रिया उसमें अल्लाह के मकसद रोजा के खिलाफ पैमाना है, जो काबिल कबूल नहीं। दूसरा उन्वान, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें ज़कात का भी बड़ा खूबसूरत पहलू आता है। मैं जुमा में तो गाहे बगाहे कहता ही रहता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए खास तौर से ये बात ध्यान रखें कि जिस तरह से रोजा या दीगर पिलर्स ऑफ इस्लाम, आकिल, ध्यान रखना एक एक लफ्ज पर, आकिल बोले तो अक्लमंद, बालिग बोले तो आप समझ रहे हैं 12 साल 9 साल, आकिल, बालिग, मालिके निसाब। मालिके निसाब का मतलब 52.5 तोला चांदी या उतना कैश या उसका मुतबादिल, उसका रिप्लेस कुछ आपके पास हो, पैसे उसी की शक्ल में 52.5 तोला, या 7.5 तोला सोना, या उसकी कैशिंग, चाहे डिपॉजिट, LIC पॉलिसी या किसी भी शक्ल में हो, आपकी जरूरत के अलावा, यानी घर के अलावा, इतना अगर आपके पास है तो गोया आप मालिके निसाब हैं। मर्द औरत का डिवीजन नहीं है, आकिल, बालिग, मालिके निसाब, मर्द औरत सब पर ज़कात फर्ज है। अगर माल पर, सोने पर अगर साल गुजर गए हैं तो उस पर ज़कात 2.5% निकालना फर्ज है। 2.5%, 1 लाख में 2,500 रुपया। आप जरा, मैं जहन ये देना चाह रहा हूं कि औरतें 20 तोला 30 तोला घर से सोना लाती, उनके पास पैसे नहीं रहते, सारे पैसे तो इनके अब्बा के पास रहते, मैं कहां से निकालूं? ये जो है ना, एक जाहिलाना शरारत है, ये जाहिलाना हिमाकत है। यानी अगर तलाक हो जाए तो आप 20 तोला सोना लेकर चली जाएंगी, लेकिन ज़कात का मसला हो तो उनके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, मैं कहां से निकालूं? याद रखें, जिस सोने चांदी के मालिक आप हैं, माँ बाप के यहां से आप लाए या अपने पैसे पर्सनल से आप खरीदे या किसी ने आपको गिफ्ट ही सही, मालिक आपको बना दिया है, तो उस सोने चांदी पर आप पर ज़कात अदा करना फर्ज है। वकील बना दें शौहर को, किसी को भी कि दे दो, आप हाथ से तो दे नहीं सकते जाकर के किसी, तो आप वकील बना, जामिन, गारंटर बना सकते हैं, लेकिन फर्ज आप पर है अगर आप मालिक निसाब हैं। ये बात एकदम ध्यान में रखें। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह थी कि अगर ज़कात आपको शाबान के महीने, यानी अभी जो रनिंग महीना है, इसमें अगर फर्ज है, फर्ज कीजिए आपकी शादी शाबान में हुई थी, आप बाप माँ के यहां से सोने लाए, चांदी लाए, सब कुछ लाए, और दूसरा शाबान गुजर गया, तो अब आपको रमजान का वेट नहीं करना। ये कौन मौलवी आपको बता दिए हैं कि रमजान में ज़कात निकाले तो ज्यादा सवाब होता? ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो 11 महीने तक नमाज मत पढ़ो, आप रमजान में पढ़ लिए तो ज्यादा सवाब हो जाता। ये कैसी सोच है? जो इबादत आप पर जब लागू होगी, जो कंडीशन आप पर जब लागू होगा, उसी वक्त आपको इमीडिएटली निकालना आप पर फर्ज है। अभी जोहर की नमाज आप पर फर्ज है, तो आप ऐसा नहीं कि आप असर के बाद पढ़ेंगी तो वो तो कज़ा की शक्ल होगी,
मगर ये ताखीर करने का आपको अजाब होगा। तो ऐसे ही अगर आपने माँ बाप के यहां से आपके पास मौजूद है, आप पर साल भी गुजर गया, तो किसी भी महीने में साल गुजर जाए आप ताखीर नहीं कर सकते ज़कात की अदायगी में। आपको बहरहाल आज आप पर, यानी आज की तारीख 23 है, आज शादी हुई थी, गए साल आपकी साल गुजर गए, उस सोने पर मालिक हैं आप, पैसे हाथ में कैश नहीं भी है तो ज़कात, इसीलिए तो कहा गया सोने या कैश पर, मतलब सोने पर भी ज़कात है। जब आप पर, अच्छा ये यहां पर आप थोड़ा सी इसको बड़े अट्रैक्शन के साथ इस बात को लीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी आपकी बेटी की शादी हो या घर में किसी की शादी हो, तो आप ताबतोड़ कोशिश करेंगे, ये एफडी तोड़ो, वो LIC तोड़ो, वो पॉलिसी तोड़ो, वो करो, ये करो, वो करो, सारी चीजें जमा करके फर्नीचर खरीदने, ये खरीदने, वो खरीदने, सारे जहेज के सामान खरीद ले। मैं समझता हूं कि आप शादी और निकाह जो सुन्नत है उसके लिए सारे FD वगैरह आपने तोड़ दिए, सारी चीजें कैंसिल कर दी आपने। तो ज़कात अगर आप पर फर्ज है और हाथ में पैसे नहीं है तो आप ये बहाना क्यों कर रही हैं कि पैसे तो नहीं है? यहां पर आप कर्जे लेकर के क्यों नहीं अदा करने की सोच रहे हैं? या आप 10 तोला सोना है तो 1 तोला बेचिए ना, आप 10 तोले का 2.5% आप निकालिए, या सोना ही निकाल दीजिए, आप गरीबों को दे दीजिए, वो आपका है ही नहीं। 2.5%, मसलन 1 लाख रुपए में 2,500 रुपया वो आपका है ही नहीं, वो अल्लाह की अमानत है बंदों के, जो बंदे फकीर हैं, मिस्कीन हैं, ये सब वो आपके हैं ही नहीं। इसलिए ये बहाने हरगिज न करना मां कि अगर ज़कात आप पर फर्ज है तो मेरे पास पैसे कहां हैं। अरे ज़कात जब सोने पर फर्ज है तो पैसे कहां है? कहीं को बोल रहे, पैसे होते तो पैसे पर फर्ज है, सोने पर फर्ज है तो सोना निकालिए 2.5%। इससे पहले कि आप ज़कात देने वाली हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने वाले मौजूद ही ना हो और फिर आप वही ज़कात रह जाए और फिर वही सोना कब्र में अजदहा सांप बन करके ये बोले कि मैं तुम्हारा खजाना हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो बंदे बंदियां ज़कात नहीं निकालेंगी वो सारा उनका जेवर, सारा कैश, सारा मसला, सारा पैसा जो जिस पर ज़कात फर्ज था वो सबको अल्लाह अजदहा बना देगा, सांप बना देगा अल्लाह ताला। और वो सांप कब्र में डसने से पहले कहेगा मैं तुम्हारा खजाना हूं, और एक बार जब आपको डसेगा तो 40 बरस तक उसका असर रहेगा। बताइए ऐसा मतलब अजाब का मुजदा देने के बावजूद आप कैसे इजी ले सकते हैं इसको? इसलिए इसको इजी हरगिज ना ले ज़कात अगर आप पर फर्ज है तो। बहरहाल ये दूसरी बात। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि फकीर और मिस्कीन जो उसके, आप सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में इसको डिटेल के साथ आप देखिएगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फरीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में इसका जिक्र है कि ज़कात फकीरों के लिए है। यानी किसको दे सकते हैं आप? तो पहला है फकीर, मैं अभी सबका डिटेल बताऊंगा फकीर किसे कहते। दूसरा है मिस्कीन, और तीसरा है वल आमिलीन अलैहा, यानी जैसे दूर दूर मदरसों से, दूर दूर मतलब कमांडेड जगहों से वसूल करने के लिए जो लोग आते हैं, जिसे आप कहें चंदा लेने वाले जो आते हैं, उनके लिए भी तीसरे। और चौथे जो हैं, ये पहले जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने तक ये चौथा मसला था कि काफिरों को भी ज़कात देते थे, इसलिए ताकि वो इस्लाम कबूल करे। ये चौथा पॉइंट जो था ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने तक था। उसके बाद ये चौथा पॉइंट निकल गया, जब सारे जहान में इस्लाम फैल गया तो अब इसकी जरूरत न रही। लिहाजा जो आयत नंबर 60 बताया मैंने, आप यहां पर मुगालता में न पड़े और आपको शक ना हो कि काफिर को भी दे सकते क्या? नहीं, आज की तारीख में काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। मुसलमान होना जरूरी है, किसके लिए? ज़कात देने के लिए भी और ज़कात लेने के लिए। तो जिसको आप दे रहे हैं वो भी मुसलमान होना और देने वाले भी मुसलमान होना, ये देखिए। और पांचवा है वफिर रिकाब, ये बिला वजह जो मतलब ये कि किसी को पकड़ लेती ना, मुजरिम बना देती, मुजरिम होता नहीं है, तो उसको आजाद करने के लिए आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं, जैसे मुसलमानों को बिला वजह के जुर्म में आज हुकूमत जो है जेल डाल दे रही, तो ऐसे को अगर उनकी जमानत के लिए पैसे नहीं तो उनको छुड़ाने में भी ज़कात की रकम यूज हो सकती। ये पांचवा पॉइंट। और छठवां पॉइंट है वल गारिमीन, गारिमीन बोलते हैं कर्ज,
कर्ज का मतलब यह होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, खाने पीने रहने सहने किसी चीज के एतबार से। अफसोस यह है कि हमारे पास 5 एकड़ जमीन रहती, 10 तोले सोने रहते, पास में बस चावल दाल खाने पीने के या कैशिंग नहीं है तो अब हाथ फैला देते। ऐसा क्यों करते? किस दिन के लिए आप रखे हैं सोने? किस दिन के लिए आपने चांदी रखे हैं? नहीं है तो आप बेचिए, खाना खाइए। मांगना इतना बुरा उन्वान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान को पीठ पर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर पीठ पर लाकर बेच करके पैसा हासिल करना यह पॉसिबल हो तो चाहिए कि ऐसा वो करे, मांगने से बेहतर है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए कर्ज का भी ये उन्वान ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि आपके पास सारी आसाइशें हैं, बस झूठ का भी 10 लाख रुपया कर्ज ले लिए और उसी को आप हाईलाइट कर रहे हैं कि 10 लाख रुपया कर्जा है। कहते आजकल तो इतने मतलब तिजारत और फाइनेंस को खिला दिए हैं कि एक जगह 10 लाख कर्जा ले लिए उसी को हाईलाइट करते बस, और दूसरी जगह से आ रहे हैं सारी तिजारत के और आमदनियां आ रही उसको ध्यान में नहीं रख। अल्लाह को आपकी ज़कात की जरूरत नहीं है, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अपनी नीयत, अपने ईमान, अपने जमीर से ये सब फैसला करना। तो कर्ज का भी उन्वान, वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में फर्ज करें हज को आप निकली, ध्यान दें, यह बात बड़ी अहम है। और अल्लाह की राह में आप निकली थी जिहाद करने के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम तबलीग करने के लिए, आपका सारा पैसा लुट गया, आपके पास कुछ नहीं रहा, जबकि आप घर आएंगी तो पैसे वाली हैं लेकिन राह में हैं आप, और अल्लाह की राह में होने की वजह से तो आपको भी ज़कात दिया जा सकता है। ये फी सबीलिल्लाह। वब्नि सबील, और ये जो मुसाफिर होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है सफर कर रहे हैं, किसी ने बटवा निकाल लिया, चोरी हो गई वगैरह, तो ये भी उसी, तो ये वब्नि सबील, ये कुल 8 पॉइंट से, जिसमें चौथा जो मुअल्लफ़े क़ुलूबुहुम जो काफिरों के उन्वान से था, वो उनको उनके अलावा 7 को ज़कात दे सकते। लेकिन आप लोग सिर्फ जो है फकीर को बस कोई भी आपके पास हाथ फैला दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, कोई तहकीक नहीं करते। मैं आज 2 बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अपने मुल्क के हालात ये हैं कि फिरका परस्त ताकतों ने बुर्के पहना करके औरतों को, ध्यान देना मां, और मर्दों को आर्टिफिशियल दाढ़ी रखवा करके, टोपी पहना करके, आपने देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह पे, पकड़े भी गए याकूतपुरा में, दबीरपुरा में, कहां कहां पहना करके आ जाते हैं, ऐसी शक्ल बना करके कि एकदम पक्के यही मोहताज हैं। जबकि मालूम हुआ तहकीक करे तो वो औरतें भी काफिर थी और ये मर्द भी काफिर था। ये सब आरएसएस वगैरह की साजिश है और फिर कापरस्त ताकतों की, गैर मुस्लिमों की। ये मुसलमान के सारे जानते हैं वो कि मुसलमान अल्लाह से बहुत डरते हैं और अपने माल का 2.5% निकालते हैं, तो अगर निकाल दिए तो फिर वो पैसा ले जा करके आप ही के खिलाफ हथियार खरीद करके फिर आप ही को बुलडोज करेंगे, आपके घर को, आपके तमाम लोगों को। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि सबसे पहले अपने जानने वालों को आप दें कि जो मोहताज है, रिश्तेदार का उन्वान नहीं दे, जानने वालों को, जिनको आप जानते हैं, जिन पर आपको कमांड है। अगर नहीं और कोई अचानक आपके घर आ गया तो वेरिफिकेशन करें, तहकीक करें। इबादत है मां, आप सोचिए ना, आप फर्ज कीजिए कि गुस्ल कर लिया, आप नहा लिए, नापाकी के गुस्ल कर लिया, अब नहा लिए, नहा लेने के बाद अब आप आए, फ्रेश हो गए, लेकिन आपका वजू टूट गया, तो क्या आप ये कह सकती हैं कि मैं गुस्ल तो कर ही चुकी हूं, नमाज पढ़ सकती हूं? नहीं, आपका गुस्ल कितना भी अच्छा रहे, लेकिन अगर वजू टूट गया है तो आपको वजू करना होगा नमाज पढ़ने के लिए। देखा आपने? आप ये नहीं कह सकते कि गुस्ल तो है, नापाकी तो दूर हो गई। नहीं, तो ये जो कंडीशंस हैं, इसको जब तक फॉलो नहीं करेंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसे ही ज़कात का भी उन्वान है कि आपको जहां देने कहा गया है वहां आपको कमांड होना चाहिए। सस्पेन और शक की दुनिया में आप ज़कात नहीं दे, आपको जरा सा भी देखते हाथा पावा हिला दिए टेढ़े हैं, और जब ले लेते ज़कात तो बाहर जाकर के हाथ भी सही हो जाते, उनके पांव भी सही हो जाते। ये ज़कात माफिया से आपको बचना होगा, तब ज़का कर जा करके आप तो सोचते हैं कि हमने दे दिया। देखिए, खैर खैरात में अगर ये फ्रॉड हो गया है तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको 1 साइडेड सवाब दे दे, लेकिन ज़कात के लिए तो आपको तहकीक करने के लिए कहा गया है। इसलिए बगैर वेरिफिकेशन के अनजान मर्द औरत को ज़कात की रकम हवाले ना करें। सबसे पहला राउंड आपके लिए अपने खानदान को देखें। यहां पर आप अपने ईगो को पैदल करें। मां, खानदान में अगर आपकी बहन, आपकी ननद, अगर आप
देखें कि वो मुस्तहक है तो आप उनको दें, ये सोचते हुए ना दें कि नहीं हमारे वलीमा में नहीं आई थी मैंने दे तो, ये कैसी बात है, नहीं हमारे को बहुत सताई है, नहीं। वो ईमान पर अगर है, मोमिन अगर है, तो आप हजारों इंसानियत का लिबादा ओढ़ने वाले काफिर से वो खानदान की बहनें आपसे बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। इसलिए अपने ईगो को यहां पर पैदल करें, इबादत आपको कमांडेड करना, और ज़कात का निजाम भी इसीलिए है कि गरीबी दूर की जाए मुसलमानों से। अफसोस की बात यह है कि आज ज़कात लेने वाले इतने अजीब हो गए हैं कि सब कुछ उनके पास मौजूद है, खाने पीने सारी आसाइशें मौजूद है, मगर आदत ऐसी हो गई है वो मांगना बंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक शख्स है जो रोज बैठता है एक रास्ते पे, अगर रास्ते पे बैठने वाला सुबह से शाम तक बैठता है, अगर वो 10-10 रुपया भी 100 आदमी से ले लिया, बताओ कितने पैसे उसके पास हो गए। आपका तो मैथ बहुत अच्छा है, जल्दी से बोलो 100 आदमी को हैं? अरे बाप रे बाप, और एक महीने में कितने पैसे हो गए उनके पास, वाह वाह वाह। हमें 5,000 महीने के कमाने वाले हमसे ज्यादा कमा रहे हो, मगर जानते हैं बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी आदत में, फितरत में घटिया सोच आ गई है। ये मांग मांग के खा करके सीने और दिल जो है सियाह हो गए उनके, इसलिए इतने कमाने के बावजूद उन्हें बरकत नहीं। और हमें भी ज़कात देने के बावजूद बरकत का उन्वान क्यों नहीं है, क्योंकि हम भी वेरिफिकेशन नहीं करते, तहकीक नहीं करते, हम भी बस दे दिए और ये सोच लेते हाँ हो गया ना जी हमने दे दिया, अब उन्होंने अगर गलत है तो अल्लाह उनको पकड़ता। आपको कैसे नहीं पकड़ता, आपको आंख दिया अल्लाह ताला ने, अकल दिया अल्लाह ताला ने, आप कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे आप। जरा सी शादी का मसला आता तो बायोडाटा के साथ साथ आजू बाजू के लोगों को तहकीक करते कि नहीं, आप पूछते कि नहीं कि लड़की कैसी है, उनके बाप मां कैसे हैं, तहकीक करते कि नहीं, आप करते। तो फिर भी तहकीक करने के बाद भी उल्टे पुल्टे हो जाएं तो फिर आप जिम्मेदार नहीं होते, तहकीक कर लिए थे। कहना यह है कि ये ज़कात का जो निजाम है, ये इबादत का निजाम है, फर्ज का निजाम है, पिलर्स ऑफ इस्लाम का निजाम है। ईमान के बाद नमाज, नमाज के साथ ही देखिए ज़कात, फिर हज, फिर रोजा, देख रहे हैं आप। तो ये पिलर्स ऑफ इस्लाम सेकंड, ईमान के बाद सेकंड पिलर है। आपका इस्लाम इस पर कायम है। अगर आपने यूं ही इसको इजी ले लिया तो आपका पिलर खराब हो गया तो छत कहां से रहेगी, इस्लाम कहां से रहेगा, तो फिर मुसलमान कहां से रहेंगे। इसलिए इजी हरगिज ना लेना ज़कात। माफिया मर्द हो या औरत, इनसे भी सतर्क रहिए, बाखबर रहिए। अपने खानदान को, अपने जानने वालों को, चाहने वाले नहीं, जानने वालों को, अगर नहीं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग फोन करके हमारे को समझ में, कहां तहकीक करना, तो आप वकील बनाइए जिम्मेदारों को कि ये पैसे हैं, आप पर भरोसा है मुझे, आप ये अपने मतलब जानने वालों को जो मुस्तहक है, मुस्तहकीन तक ये पहुंचा दें। ये याद रखिएगा आप। और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट जो आज की दर्स में, सादात मर्द और औरत को, सादात समझ रही हो आप, सादात फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद, हसनी हुसैनी सादात, हाशमी घराने वालों को, हैदराबाद में तो समझना आसान है बिल्कुल, सैयदों को चाहे मर्द हो या औरत हो, ज़कात की रकम नहीं देना। अब जरा सुनिए आगे जो आपके दिमाग में आ रहा, अरे अगर सैयद जो है गरीब हो तो कैसा है ना। हाँ सुनिए, मैं सारा डिटेल बता रहा हूं, तवज्जो सुने। ज़कात की रकम नहीं देना। ज़कात की रकम कितनी होती है 1 लाख में? 2,500। कितने बचे आपके पास? 97,500 है ना, 97,000 + 50 है कि नहीं। हाँ 2,500 को निकाल दिए तो 2,500 में सबसे 97,500 बचे नहीं। तो अब जो गरीब सादात है ना, वो 97,500 में आप उनकी मदद कीजिए। 2,500 ये आप पर फर्ज है, वो आपका माल ही नहीं है। तो ये रकम आपको, ये जो 7 जने हमने अभी गिनाया सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में, 60 में, ये उनको देना है आपको। और जो आपके पास बचे हैं 1 करोड़ में 2.5 लाख निकाल दीजिए, वो जो बचे हैं उनमें से आप जो है इनकी मदद कीजिए। और जानते हैं क्यों इनकी मदद करेंगे आप? ये इसलिए कि ये खून रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है।
और ज़कात का जो माल होता है ना, ये नापाक माल होता है, मैल होता है। नापाक भी ना बोलिए, मैल होता है। यानी 1,00,000 रुपया अगर ज़कात उस पर फर्ज है और 2,500 नहीं निकाले तो वो पूरा 1,00,000 रुपया जो है अभी गंदा है, यूज करेंगे तो बरकत नहीं होगी उसमें। लेकिन 2,500 निकाल दिए तो 97,500 पाक हो गया। इसीलिए ज़कातुल माल का माना होता है माल को पाक करने वाली चीज। ज़कात सफाई को बोलते। अगर आप कभी सुने होंगे तज़किया, तो तज़किया नफ्स का माना होता है नफ्स को पाक करना, उसी से ज़कात है। तो ज़कात का माना ज़कातुल माल, माल को पाक करने वाला पहलू। यानी 2,500 ये ज़कात है और 97,500 पाक होने के लिए 2,500 निकालना जरूरी है। अगर 2,500 निकालेंगे तो 97,500 पाक नहीं होगा। तो आप जरा फलसफा सुनिए कि 2,500 आपने निकाल दिया, गोया आपने अपने माल को पाक कर दिया। और अल्लाह पाक सादात के बारे में फरमाता है कि ए मेरे हबीब के घराने वाले और वालियों, मैंने तुम्हें पाक साफ सुथरा कर दिया। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए मेरे नबी के घराने वालों, मैंने तुम्हें ये चाह लिया है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दें और पाक साफ सुथरा करें। तो अब जब अहले बैत सादात किराम पाक साफ सुथरा अल्लाह पाक ने उन्हें पैदा किया, तो अब उनको माल भी, आगे समझ रहे हैं आप, माल भी वही देंगे जो पाक साफ सुथरा होगा। तो ज़कात का माल उन्हें इसलिए नहीं दिया जाएगा कि ज़कात का माल जो होता है वो माल को पाक करने वाला होता है, गोया वो खुद पाक नहीं होता, वो पाक करने वाला होता है। तो बचा हुआ माल पाक, लिहाजा अहले बैत अतहार हाशमी घराने सादात घराने वालियों को अगर वो गरीब मुस्तहक है और वाकई मुस्तहक हैं तो उनकी मदद कीजिए, उनका ताउन कीजिए 97,500 या 97,500,000। मसला समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। 2,500 ज्यादा है या 97,500 ज्यादा है? 97,500 तो ज्यादा अभी आपके पास मौजूद है। और वो जो 2,500 रुपए हैं वो आपके थे ही नहीं, वो 7 जने जो कुरान ने कहा उनके थे, आप उसके अमीन थे, बस आपके पास वो अमानत थी, आपने उनको पहुंचा दिया। हां, ये पहुंचाने की बुनियाद पर अल्लाह ताला का जो बैंक है वहां जब आप पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको अल्लाह ताला देगा, वहां जब आपको मिलेगा। दुनिया के बैंक में आप रखो तो आपको शक भी होता। अभी देखिए ना, आप यूट्यूब खोलिए तो कितने बैंक को बंद कर दिया हुकूमत ने, सारे लोग रो रहे हैं। किसी के 50 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, सब फंस गए हैं पैसे। अब हुकूमत क्या बोल रही है, जिसके 50 लाख है हुकूमत उनको 5 लाख देगी। अब आप बताइए डूबा कि नहीं डूबा? डूब गया। कितना भी रोइए, अब आपका कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इस्लाम की हुकूमत नहीं है। इस्लाम होता तो ऑल इन ऑल आपको देता, कोई नहीं डूबता। तो ऐसे ही आप जो अल्लाह की बारगाह में चाहे शक्ल फकीरों और गरीबों की, इब्ने सबील वगैरह की नजर आ रही है, लेकिन वो आप अल्लाह के बैंक में रख रही हैं वो 2,500 रुपए, और कुछ नहीं डूबेगा जब आपका वो मतलब ये कि वो पुर जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का दिन और तारीख पुर जाएगा, यानी मौत के बाद आपको कब्र ही से अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाली हुई ज़कात, जिस तरह ना निकालने वाले का माल अज़दहा बन जाएगा, ऐसे ही निकालने वालों का माल आकर के आपको पॉजिटिविटी के साथ पुरसुकून रहो। तुमने ज़कात निकाले, तुमने हज किए, ज़कात सारे हुदूदुल्लाह की पासदारी की है, कोई डर की बात नहीं है। तो अब मतलब ये कि कब्र में जितने भी कीड़े मकोड़े भी होंगे ना, वो आपको काटेंगे नहीं, आपके दोस्त बन जाएंगे। फुल अटेंशन से आप जियो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें कब्र ही से शुरू हो जाएंगी। कहना यह है कि ज़कात के हवाले से जो ये तफसीलात, बिलखुसूस सादात औरतें, ये बन मुट्ठी के एतबार से उनकी मदद कीजिए। और एक और बात, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात भी बोल रहा हूं कि कुछ लोग जो है ना जबरदस्ती एक थैला मतलब ये कि दे देते हैं। जबरदस्ती तो नहीं बोलेंगे, किसी को भी एक थैला ये दे दिए, वो दे दिए, साड़ी दे दिए, ये दे दिए। मां जानती है जिसको आप देंगे अगर वो मुस्तहक है वो तो ले ही लेगा या ले ही लेगी, लेकिन
آپ ذرا کبھی یہ سوچئے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ جو بچھائی ہیں سارے آشائش اور کھانے پینے کی چیزیں، کیا ایک ساڑی دے دینے سے یا ایک تھیلا چاول دے دینے سے کہ 0% بھی ان کی وہ خواہش پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک تھیلا آپ نے دے دیا، لے لے گا وہ، کیا چاول کھا کر کے وہ صرف رہے گا؟ یہ ہماری قوم کے مالدار مرد عورت بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے والدین نہیں سوچتے اس بات کو۔ ایک تھیلا دے دیا، ہو گیا، اور دینے کے بعد بھی سامنے والے لے لیے، بڑے فخر سے اس کا تشہیر ہوتی۔ نہیں ماں، میں مشورہ دوں گا آج کی تاریخ کے حساب سے، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے اگر بانٹتی ہی ہیں اور افطار کرنے کے لیے سوچتی ہیں کہ سامنے والوں کو ہم چاہیں کہ ہمارے مطلب وہ افطاری اچھا کریں اور ہمیں ثواب ملے، تو آپ بند مٹھی انہیں پیسہ دیجئے۔ ہو سکتا ہے اس پیسے سے اپنی بیٹیوں کے کپڑے وہ اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق لے آئے۔ آپ نیتیں اچھی رکھیے، ہو سکتا ہے وہ کھجور لے آئے، اچھا ہو سکتا ہے وہ اچھے سے اچھا مطلب حریص یا حلیم کھائے، بریانی کھائے اپنے من کی۔ یعنی پیسہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز پوری کرنے کے لیے وہ ایک تنہا وہ چیز ہے، لیکن جو چیز آپ لا کر دے دیں گی وہ تو کھائے گا ہی، وہ تو پوری مطلب لے ہی لے گا۔ مگر جو دعا پیسہ کے باب میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے کہ اس پیسے سے ہم وہ چیزیں خرید سکتے ہیں جو ہماری بھی خواہش ہے، ہمارے بچوں کی بھی خواہش ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ سوچ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے مسجد میں بھی یہ مشورے دیے کہ آپ لوگوں کو اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی خواہشوں کے احترام سے مدد کریں۔ آپ ساڑی دے کر کے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا ساڑی ہی پہننے والی گھر میں ہے؟ وہ کنواری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کے لیے جو بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز کے لیے جو بیٹھی ہوئی ہیں، 70,000 سے اوپر ہونے والا ہے سونا، لاکھ کے اوپر ہو جائیں گی 10 سال کے بعد ہماری وہ بیٹیاں جن کی شادیاں ہیں۔ آپ کی شادی کے وقت 10,000 5,000 روپے سونے تھے۔ کیا نہیں چاہتے ہیں وہ ماں باپ کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو 1 تولہ سونا دیں؟ وہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے دے تو دیا ایک تھیلا چاول، نہیں، اپنے خاندان کی ان ماں اور بہنوں کی سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی مطلب سسکاریوں کو محسوس کرو۔ ماں، صرف زکات دے کر کے آپ سینہ مت پھلا لینا، آپ ان کی ضرورتوں کو محسوس کیجیے۔ آپ کنورٹ مت کیجیے کسی چیز میں زکات کی رقم کو، کسی چیز میں۔ مسجدوں میں اب تو الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں جو میں نے جب ڈانٹا ہے ایسا مت کیجیے، وہ آنے والوں کو ساڑیاں بانٹ دے رہی۔ ارے ساڑیاں صرف پہنیں گی، ساڑیاں پہننا بس صرف ان کا کام ہے؟ کیسی سوچ ہے؟ چاول کھائیں گے صرف گھر والے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب وہ چاول دیکھ کر کے آہ نکلتی ہوگی، دینے والے کاش چاول کے ساتھ 2 کلو گوشت بھی دے دیا ہوتا، کاش چاول کے ساتھ کچھ سالن کا سامان بھی دے دیا ہوتا۔ کیا نہیں نکلتا ہوگا ان کے دلوں سے یہ باتیں؟ اس لیے ان چیزوں کو آپ ہم سب محسوس کرنا، اور پھر ضرورت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ضرورت کے کام آنے کا نام سچا مسلمان ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو ایسے جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے۔ آج زکات واجب فرض ہوئی ہے تو آج زکات نکال دیجئے۔ ثواب کی کوانٹٹی نہ دیکھیے، اللہ کی کوالٹی دیکھیے۔ اللہ اگر دینا چاہے تو وہ سنڈے کو اتنا دے دے کہ آپ رمضان میں نہ لے سکیں اتنا، اور نہ دینا چاہے ہزاروں رمضان آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، اور وہ نہ دینا چاہے تو آپ کیا ضد کر کے لے سکتی؟ نہیں، یہ ضد ہے کہ رمضان میں دیتا نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اگر یہ سوچ رکھیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، برکت، مغفرت کے جو دروازے رکھے اور کھول دیے ہیں رمضان میں، یقیناً آپ کو اس میں داخلہ نصیب کرے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس میسج کو آپ کے دلوں میں ڈالے گا، اور دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال کے رمضان کی تمام تر سعادتوں کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، اور جو بھی اللہ نے ہم سب کو کے لیے رکھے ہیں وہ عطا کرے، توفیق خیر سے نوازے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔